अस्सलामु अलैकुम। रब्bi इश्रह li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My dear students, Assalamu alaikum. Today we are switching over to a new chapter, that is problems and potential solutions in EIA. Since EIA is a relatively new and emerging sciences, therefore whenever something is new and emerging, they are always associated with some sort of problems in its infancy phase. Whenever something new product is introduced in the market, it is always being accompanied by a lot of hypes and cry, and there are lots of problems associated with its usage, with its combination, with its composition, and so many aspects. Similarly is the case with EIA. Since EIA is a relatively new and emerging sciences, it just started its flight in 1970. So it is still evolving, it is still emerging. Therefore, it is faced with a number of problems in terms of its methodology, in terms of its concepts, in terms of its usage. Each and every country interprets according to its own view. That's why इसलिए इसके साथ बहुत सारे problems भी associated हैं. तो क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ emerge होते हैं तो उसके साथ ही problem आता है. अब EIA के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं तो EIA उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या ऑफर कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम ये प्रॉब्लम्स ये डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम अपने पहला प्रॉब्लम जो है टू मैनी अल्टरनेटिव्स. जब भी आप EIA करते हैं और आपके साथ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो, तो आप उसको कैसे हाउ टू चूज द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव और किस टाइम पर, किस लेवल पर, किस टियर पर कौन से अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करें. क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को एज इन वन उसमें आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम बन जाते हैं. EIA faced this problem at its very infancy stage. Suppose a country wants to establish a mass transport system within a city. So it will be faced with a number of choices. The first problem would be, what should be the mode of transport? Should it be buses? Should it be trains? Should it be car? The second one, for each mode of transport, what type of mode should then be adopted? If you go for buses, so whether it should be small buses or large buses, the transit should either be on the surface or it should go underground. So what should be the mode of the transport? Then which route should be followed? For in a city there are a lot of stations and you want to approach each and every station, you want to pick all the passenger from each and every station. So there are lots of routes as well. So you become confused at which route should be followed. And finally, what should be the fare or rate structure? अब ये जो एक प्रॉब्लम है कि आप एक इलाके में एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करना चाहते हैं और आपके साथ इतने अल्टरनेटिव कि पहले आप इस पर कंफ्यूज है कि कौन से ट्रांसपोर्ट के मूड को उसमें अडॉप्ट करें. हम बसों को स्टार्ट करें या ट्रेन या कार सर्विस, किस चीज़ को? फिर हर मूड के लिए फिर उसका मूड क्या होना चाहिए, मतलब वो लार्ज हो या स्मॉल हो, सरफेस हो या अंडरग्राउंड हो, और फिर हर एक के लिए Okay, dear students, so the solution to this problem is the tiered approach. ये जो प्रॉब्लम है, जब आपके साथ बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके साथ EIA में जो अप्रोच यूज़ होता है उसको कहते हैं टियर अप्रोच. टियर अप्रोच ये है कि आप उस प्रॉब्लम को मुख्तलिफ टियर्स में स्प्लिट करें, उस प्रॉब्लम को मुख्तलिफ लेवल्स पर आप उसको तकसीम करें, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें और वन बाय वन जाएं. पहले जब एक सॉल्व हो जाए तो उसके बाद दूसरी पर जाएं, दूसरा जब सॉल्व हो जाए तो तीसरे पर जाएं. तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम सीक्स सॉल्यूशंस टू रिड्यूस द प्रॉब्लम टू मैनेजेबल प्रोपोर्शन बाय हैंडलिंग इट एज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस रादर देन वन बिग चॉइस. जिस तरह हमने कहा कि बजाय इसकी कि आप एक बड़े चॉइस को ले लें और एक बड़ा आपके साथ कि बस हमने जाना है और मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम खोलना है, तो उससे पहले ये है कि उसी मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप पहले वो जो बड़ा चॉइस है उसको सब चॉइसेस में तकसीम करें, उसको मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में डिवाइड करें
और वन बाय वन एक-एक प्रोपोर्शन को डिस्कस करके उसको फिर एडॉप्ट करें। अब टियर अप्रोच में क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले ये है, ये द tiered approach seeks to reduce an unmanageably large number of alternatives by defining the problem in terms of a series of choices, as we discussed. This approach reduces the cost and time of EIA while ensuring that all alternatives are considered. The level of details increases with each tier so that the final choices is based on an in-depth study of a few most appropriate alternatives. जब आप ये तरीका अप्लाई करते हैं तो आपके साथ इसके दो फायदे हो जाते हैं। एक आपका कॉस्ट कम हो जाता है और दूसरा आपके EIA का टाइम कम हो जाता है। और आप सारे के सारे अल्टरनेटिव जो हैं तो वो कंसिडर करते हैं। इस तरह नहीं कि कोई अल्टरनेटिव आपसे रह जाता है। और अल्टरनेटिव 1 पर आपको अगर कम डिटेल चाहिए तो उसके बाद अल्टरनेटिव 2 में ज़्यादा डिटेल चाहिए, फिर अल्टरनेटिव 3 में उससे ज़्यादा, फिर अल्टरनेटिव 4 में उससे ज़्यादा। और ये सारी डिटेल्स, ये सारा डेटा जब आप कलेक्ट करते हैं तो हर एक स्टेप पर आप उसकी एनालिसिस करते हैं, तो आखिर में आपके साथ वो जो एक लामुतनाही सिलसिला था अल्टरनेटिव्स का, वो एक मैनेजेबल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स में आ जाते हैं और आप उसको पिक कर देते हैं। जिस तरह जो क्वेश्चंस हमारे उसमें है, उसमें ये है कि अगर आपने फिर कहीं पर मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च करना, तो सबसे पहले है कि सिलेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को पिक करें। अब इसको कैसे करेंगे? इसको इस तरह करें कि आपको पता हो कि उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। उस एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, इसमें जॉब वाले कितने हैं और इसमें जॉबलेस कितने हैं। इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो सरकारी जॉब करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं, जो मजदूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे उनके अपने बिजनेसेस होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो अस्पतालों में और उसमें जॉब के लिए जाएंगे। तो आप पहले एक डेटा कलेक्ट करें, एक ओवरऑल, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो कि कितने लोग हैं यहाँ पर। उन लोग में यहाँ से कितने लोग रोजाना निकलते हैं सिटी में, और सिटी में वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं, और उनकी ड्यूरेशन वहाँ पर कितने होते हैं। मतलब एक बंदा सिर्फ सौदा तलब के लिए जाता है, तो दूसरा बंदा जो है वो पूरा दिन गुजारता है, तो तीसरा बंदा जो है वो 12 बजे तक काम करते हैं। आपको जब ये सारा पता चल जाता है तो फिर आप उसमें देखें कि आपकी ये जो पॉपुलेशन साइज है और ये जो नीड्स हैं और ये जो रूटीन वर्क है, उसमें कौन सा चीज़ आपको बेस्ट सर्व करेगा। आप बसेस पर जाना चाहते हैं, या इसके लिए ट्रेन बेहतरीन जरिया होगा, या आप कार्स को सेलेक्ट करेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि जो एरिया है जहाँ जहाँ लोग जाते हैं वहाँ के रास्ते कितने हैं, उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, ठीक है, वहाँ पर रश पीक आवर्स क्या हैं, और आपके इस सिस्टम से वहाँ की रश में इजाफा होगा या वहाँ का रश कम होगा। ये सारा डेटा एनालिसिस करके आप फॉर एग्जांपल आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हमें यहाँ पर बस सिस्टम शुरू करना चाहिए। अब पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। सारे डेटा के एनालिसिस के बाद सारे इस पर एग्री हो गए कि हमने यहाँ पर बस सिस्टम लॉन्च करना है। अब बस कैसे लॉन्च करें? चूज बेस्ट टाइप फ्रॉम द सिलेक्टेड मोड। अब आपने बस को जब स्टार्ट करना है तो आपके साथ छोटे बसें होनी चाहिए या बड़े होने चाहिए। आपके साथ जो सड़क की कंडीशन है या जो रश की कंडीशन है, आपके साथ ओवर ब्रिजेस आप इसके लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे, या आप अंडरग्राउंड बसें चलाएंगे, या आप सरफेस पर उसके लिए वो सड़क बनाएंगे। अब जब ये जो जगह है, अब उसके लिए आपको बहुत बड़े बसेस चाहिए या आपको छोटे छोटे ज्यादा चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर अब बहुत बड़ा बस चलता है लेकिन हर ट्रिप में उसमें 15-20 लोग जाते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और अगर आप छोटे 5 की बजाय 10 चलाते हैं लेकिन हर बस जो है तो वो उसमें वो कंप्लीट चला जाएगा। तो ये भी देखें कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और उसकी नीड कितनी है, और फिर उसके लिए कौन-सा बस जो है वो सूटेबल होगा। ये भी, लेकिन ये बातें आप हवा में फायरिंग नहीं करेंगे, ये भी आप जो डेटा आपने कलेक्ट किया उस डेटा में से उसकी फिर आप फर्दर एनालिसिस करेंगे। जिस तरह हमने पहले कहा था कि हर टियर पर आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो उस डेटा को एनालाइज करके फिर आप उसी एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखकर फिर आप दूसरी टियर में आप ये फैसला करेंगे कि अब अगर बसें हैं तो बसों में कौन सा होना चाहिए, छोटा बस चाहिए या बड़ा बस चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए या और ब्रिजेस होने चाहिए या सरफेस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी जो एग्जिस्टिंग विसिनिटी है उसकी जो हालत है, उनकी जो रोड्स हैं, लोगों की जो रोजगार हैं, लोगों की जो जॉब्स हैं, लोगों की जो टाइमिंग्स हैं, लोगों की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सिटी में जो रश की कंडीशन है, इन सबको देखकर फिर आप
उसमें से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट, फिर अभी जब आपने जो भी सेलेक्ट किया बस उसके लिए अब आप मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट चूज करें। फॉर एग्जांपल आपकी रूट ऐसी मतलब मुख्तलिफ रूट्स जाते हैं, अब आपकी बस की कंडीशन को देखकर देखेंगे कि अगर बड़ा बस है तो उनके लिए कौन सा रूट बेहतर है और अगर छोटा बस है तो उनके लिए कौन सा रूट बेहतर है। अगर लोग आपकी गलियों और कुछ और वहाँ से आते हैं तो वहाँ पर आपके लिए छोटे-छोटे मिनी कोचेज़ होने चाहिए। लेकिन अगर वो मेन जगह पर आकर फिर उन्होंने कहीं जाना है और बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए फिर बड़े बसेस होने चाहिए। तो ये रूट जो हैं ये भी आपने जो पहले जो भी मूड सेलेक्ट किया उसके बेस पर फिर आप देखेंगे कि उस मूड ऑफ बसेस या जो भी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए अब कौन सा रास्ता बेहतरीन है। कौन-सा रास्ता ये है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मुकर्रर करदा मंज़िल पर पहुँच जाएँ और वो रास्ता वो रूट ऐसी जगह से जाएँ कि अब जितने भी लोग हैं वो अपनी जो उनकी डेस्टिनेशन है उनके करीब-करीब वो उतरें। हर एक की जगह तक तो बस नहीं जाएगी लेकिन जहाँ से वो बस स्टॉप है उससे उसकी जो जॉब स्टेशंस है वहाँ पर करीब हो और जब आपने ये कर लिया तो आखिर में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया कि इस रूट पर फिर किराया कितना होना चाहिए। किराया आप कैसे डिटरमिन करते हैं? जितने लोग वहाँ पर सफ़र करते हैं, जिस इंजन ऑफ बस जो है वो आप यूज़ करते हैं, उस पर जो टोटल कॉस्ट उस बस की अपनी कॉस्ट, उसकी पेट्रोल की कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट और उनके ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाहें, ये सारे निकाल कर उसका जो मंथली खर्चा निकलता है उसको फिर उस पूरी पॉपुलेशन पर डिवाइड करके उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि पर हेड किराया कितना होना चाहिए। तो ये जो सीमिंगली एन अनमैनेजेबल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स इनिशियली जो आपको नज़र आ रहे थे, जब आपने टियर अप्रोच अप्लाई किया, तो वो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वन बाय वन रिड्यूस होते गए और आखिर में आप बगैर किसी टेंशन में, बगैर किसी उसके आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। So I hope I might have cleared your concept about the tiered approach. If you have any question, I'll be pleased to respond to your question. Thank you so much.